गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पैक्ट ऑपरेटर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे वीक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस। वीक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस क्या होता है ये जानने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? सपोज दैट xn is a real value sequence. Then this sequence xn is called convergent sequence if the limit of the sequence xn is exist. कोई सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट तब होगा जब उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस। फर्स्ट इज स्ट्रांगली कन्वर्जेंट। Again, suppose that xn is any sequence defined in non-linear space. एक हमने non-linear space लिया है, कोई भी space हो सकता है। इस space में एक sequence लिया है xn. Suppose that there exists a point x belongs to x such that xn converges to the point x. Then this sequence xn is said converges strongly to the point x if condition is norm of xn minus x tends to 0 as n tends to infinity. अगर ऐसा कंडीशन मिले कि norm of xn minus of x tends to 0 when n tends to infinity, then this sequence is called strongly convergent sequence. The another type of convergent is weakly convergent. Weakly convergent क्या है? Again suppose that x कोई नॉन लीनियर स्पेस है। इस नॉन लीनियर स्पेस में एक सीक्वेंस है xn such that xn converges to the point x. Then this sequence xn is said to converges weakly to the point x if condition क्या होगा? f of xn converges to fx, where f is bounded linear functional defined on given space x. Weak convergence is denoted by the symbol. क्या सिंबल होता है कि xn converges to x, यहाँ पे मैंने w लिखा हुआ है, which shows that xn is weakly convergent sequence. तो weakly convergent sequence क्या है? कोई सीक्वेंस xn किसी पॉइंट को वीकली कन्वर्ज करेगा कब? अगर उनकी correspondence images f of xn converges to fx where f is bounded linear functional defined on x. That is, we can say that f is element of dual space of the given space. तो ये था वीकली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है? सपोज दैट x is any given space, then this space is called compact space if every open cover of x has a finite subcover. अगर किसी स्पेस के ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है तो दिया हुआ स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस होगा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर वो कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है। फिर strongly compact। strongly compact क्या है? सपोज x कोई नॉन लीनियर स्पेस है, कोई भी स्पेस हो सकता है, एंड सपोज दैट a इज सबसेट ऑफ x। ठीक, अगर a कैसा हो कि एवरी convergent sequence of A has a strongly convergent subsequence, then this set A is called strongly compact subset of X. अगर A के हर एक सीक्वेंस का एक ऐसा
सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो कैसा हो, स्ट्रांगली कन्वर्जेंट हो, तो हम कहेंगे ए इज स्ट्रांगली कॉम्प्लेक्स सबसेट ऑफ एक्स. नेक्स्ट इज वीकली कॉम्पैक्ट. Again, suppose that X is any non-linear space or any type of space, and suppose that A is subset of X. Then A is called weakly compact if every sequence in A has a weakly convergent subsequence. अगर A में हर एक सीक्वेंस का एक ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो कैसा हो, वीकली कन्वर्जेंट हो, तो A वीकली कॉम्पैक्ट सबसेट कहलाएगा X का. Now, sequentially compact. Again, suppose that X is any non-linear space and A is any subset of X. Then A is called sequentially compact if every sequence of A contains a convergent subsequence. Next है B sequentially compact. Weak sequentially compact क्या है? Again, suppose that X is any non-linear space and suppose that A is subset of X. Then A is called weak sequentially compact if every sequence of A has a weakly convergent subsequence. अगर A के हर एक सीक्वेंस का एक ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो कैसा हो, वीकली कन्वर्जेंट हो, तो उस केस में हम कहेंगे A is weak sequentially compact. Now there are some properties of weak sequentially compact. इन प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन देखते हैं. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. सपोज दैट X is dual of another non-linear space, then every closed unit ball in X is weak sequentially compact. क्या कह रहे हैं कि अगर X डुअल स्पेस है किसी दूसरे नॉन लीनियर स्पेस का, उस केस में X के जितने भी क्लोज यूनिट बॉन्ड होंगे वो सभी कैसे होंगे, वीक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होंगे. देखते हैं इसका सॉल्यूशन या इसका प्रूफ. लेट Y is non-linear space and suppose that X is dual of Y. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, X is the dual space of another non-linear space. तो एक non-linear space हमने चूज किया Y और इसका dual space क्या लिया है, X लिया है. अब क्या शो करना है कि X के जितने भी क्लोज यूनिट बॉल होंगे वो कैसे होने चाहिए, वीक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. नाउ फॉर Y belongs to Y एक सेट हम बना रहे हैं IY. किस तरीके से, क्लोज इंटरवल के फॉर्म में जिसके एलिमेंट क्या होंगे, फ्रॉम माइनस नॉर्म ऑफ Y टू प्लस नॉर्म ऑफ Y. I of Y क्या है, एक क्लोज इंटरवल है. ऑब्वियसली दिस विल बी द सबसेट ऑफ R. Since we know that closed interval are closed set and bonded, and since this is a subset of R, so by Yin-Borer theorem, we can say that each IY is closed. Now, let I, this is
is equal to प्रोडक्ट ऑफ आई बाय, सभी आई बाय कॉम्प्लेक्स सेट है और आई कैसा डिफाइन किया है, प्रोडक्ट ऑफ आई बाय। अगेन बाय टैगनॉफ थ्योरम, टैगनॉफ थ्योरम क्या कहता है कि अ नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेट इज कॉम्पैक्ट, देयरफॉर आई कैसा सेट होगा, कॉम्पैक्ट सेट होगा। नाउ let B is closed unit ball in X and suppose that X is the element of B। अब एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन a mapping T from closed unit ball B to I। किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, that carries the point x of B to x of y which is equal to T of x and which belongs to I। B से I में एक मैपिंग हमने डिफाइन किया है T, किस तरीके से डिफाइन किया है, जो B के एलिमेंट को कहाँ पे मैप करेगा, x y पे, जो किसका एलिमेंट होगा, I का, x y को और हम क्या लिख सकते हैं, T x। तो जिस तरीके से हमने मैपिंग डिफाइन किया है हम कह सकते हैं कि T 1-1 मैपिंग होगा और T लीनियर मैपिंग भी होगा। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये लीनियर और 1-1 मैपिंग होगा। In other words, we can say that T embeds B onto I। Now, अब हम क्या प्रूव करेंगे, T of B is closed subset of I। T of B क्लोज सबसेट होगा I का, ये प्रूव करना है। सिंस B कैसा सेट है, क्लोज सेट है और T एम्बेडिंग मैपिंग है, एम्बेडिंग मैपिंग कंटीन्यूअस मैपिंग होते हैं। Also we know that the continuous image of the closed set is closed, so we can say that T of B is closed subset of I। Now T of B is a closed subset of I and I is compact। Again by the property of compact set, क्या properties होती है, every closed subset of a compact set or compact space is compact। So we can say that T of B is compact subset of I। और equivalently T of B is compact subset of Y। क्यों, क्योंकि I किससे फॉर्म हुआ है, Y के एलिमेंट से। Now suppose that Xn is a sequence in B such that Xn converges to the point X। B में एक सीक्वेंस चूज कर रहे हैं जो B के ही किसी पॉइंट X को कन्वर्ज करता है। Suppose that this sequence Xn has a subsequence। Suppose Xn A is subsequence of sequence Xn। Since Xn सीक्वेंस है B में, therefore T of Xn ये सीक्वेंस होगा T of B में। Now T of Xn is sequenced in T of B and T of B is a compact। Again by the property of compact set, कोई set compact कब होता है, if and only if every sequence has a convergent subsequence। Therefore T of Xn का एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो सपोज दैट T of Xn A is subsequence of the sequence
T of xn such that limit k tends to infinity T of xn k, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, या कह सकते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करी है, तो सपोज इस सब सीक्वेंस की लिमिट क्या है, x ऑफ y। x ऑफ y जैसा हमने मैपिंग पहले भी डिफाइन किया, x ऑफ y किसकी इक्वल है, t ऑफ x की। नाउ t कैसा मैपिंग है, लीनियर मैपिंग है, साथ ही साथ t बॉन्डेड भी होगा। क्यों, बिकॉज t किस पे डिफाइन है, ऑन क्लोज यूनिट बॉल b, दैट इज t is linear as well as bonded। तो क्या मिल रहा है, t is bounded linear functional defined on I, and I is a subset of y, so we can say that t is bounded linear functional defined on y, that is t किसका मेंबर होगा, डुअल स्पेस ऑफ y का, एंड बाय आवर assumption डुअल ऑफ y ये किसके इक्वल था, x का, तो कह सकते हैं t is bounded linear functional on x, that is t किसका एलिमेंट हो जाएगा, डुअल ऑफ x का। तो फाइनली क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक सीक्वेंस हमने लिया था xn in B such that xn converges to x, then there exists a subsequence of xn, xn का एक subsequence क्या मिला, xn k such that T of xn k is converges to the point xy which is equal to T of x. This shows that the sequence xn is weakly convergent sequence. सीक्वेंस xn का एक ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कैसा है, वीकली कन्वर्जेंट है, तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस xn वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो फाइनली हमने क्या शो किया कि x का एक क्लोज यूनिट बॉल लिया b जिसमें एक सीक्वेंस डिफाइन किया xn, और हमने ये शो किया कि उसका एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कैसा है, वीकली कन्वर्जेंट है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, b कैसा सेट होगा, B सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट x is equal to y star, y is separable non linear space, then every closed unit ball in X is B sequentially compact. Next property है, again if X is the dual of some another space where Y is given that separable long linear space, then every closed unit ball in X is weak sequentially compact. तो जैसे दिया हुआ है, given that Y is separable space, Y separable space है, तो by definition of separable space Y has a countable dense subset। Let एक सेट हम ले रहे हैं y के जो कैसा होगा, countable and dense।
and this is a subset of Y by definition of separable space. Now, let B is closed unit ball in X and Xn is a sequence in B such that Xn converges to X. एक सीक्वेंस हमने चूज किया है Xn क्लोज यूनिट बॉल B में जो B के ही किसी पॉइंट X को कन्वर्ज करता है. Since set Yk कैसा सेट है? Dense. So we can choose a point Y1 such that the sequence Y1 of Xnk ये कैसा सीक्वेंस हो? कन्वर्जेंट. Xnk क्या है? सब सीक्वेंस है. सीक्वेंस Xn का Yk डेंस सेट है तो Yk से हम एक पॉइंट Y1 इस तरह से चूज कर रहे हैं कि Y1 ऑफ Xnk कैसा सीक्वेंस हो? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो. Again select a point Y2 from Yk such that the sequence Y2 of Xnk ये कैसा सीक्वेंस हो? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो. Continue this process and choose a point say J belongs to I such that the sequence Yj of X and K is convergent sequence. The selection of the points Y1, Y2 and so on, these are possible because Yj is dense set. Now, since Yj is dense subset of Y, so by definition of dense subset, closure of Yj, this will be equal to Y. That is, Yj is closed subset of Y. ये close है, तो by definition of closed set, this contains all of its limit point. तो एक point हम choose कर रहे हैं किस तरीके से कि Y of Xnk this sequence is convergent. ठीक? That is Y of Xnk limit a tends to infinity, this limit will be exist. Sequence convergent है तो इस sequence की limit exist करेगी. Suppose इस sequence की limit है Z of Y. तो Z को क्या होना चाहिए? जैसे इसके पहले थ्योरम में भी हमने मैपिंग डिफाइन किया था, उसी के अकॉर्डिंग Z कैसा फंक्शन होगा? लीनियर फंक्शन होगा, साथ ही साथ Z बॉन्डेड भी होगा. दैट मीन्स Z बॉन्डेड लीनियर फंक्शनल होगा. किसमें बॉन्डेड लीनियर फंक्शनल होगा? X पे. ठीक है, तो अगर Z बॉन्डेड लीनियर फंक्शनल है X पे तो Z किसका एलिमेंट होगा? डुअल स्पेस ऑफ X. दैट इज Z belongs to X star. जैसा हमने पहले थ्योरम में प्रूव किया, सेम आर्गुमेंट हम शो कर सकते हैं. Z is a bonded linear functional or X, that is Z will be the element of the dual space of X. तो क्या रिजल्ट मिला कि B में हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया Xn जो किसी पॉइंट X को कन्वर्ज करता है और क्या शो किया?
उस सीक्वेंस एक्सएन का एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है। कैसा कन्वर्ज करता है? वीकली कन्वर्जेंट। देयरफॉर वी कैसा सेट होगा? वीक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। Let X is reflexive non-linear space, then every closed ball in X is V sequentially compact। अगर X रिफ्लेक्सिव नॉन लीनियर स्पेस हो तो उस केस में X में जितने भी क्लोज यूनिट बॉल होंगे वो सभी कैसे होंगे? वीक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होंगे। देखते हैं। गिवन दैट X कैसे स्पेस है? रिफ्लेक्सिव नॉन लीनियर स्पेस। ठीक, अब इसका एक क्लोज यूनिट बॉल लेते हैं, सपोज B। कैसा है? क्लोज यूनिट बॉल in X and let Xn is a sequence in B। Now अब हम एक दूसरा स्पेस जनरेट कर रहे हैं Y। कैसे जनरेट कर रहे हैं? This is equal to closure of linear span of Xn। सीक्वेंस एक्सएन का लीनियर स्पान बनाएंगे और उसके क्लोजर से हमने क्या जनरेट किया? एक दूसरा स्पेस वायर जनरेट किया। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? y। y कैसे स्पेस होगा? क्लोज सब स्पेस ऑफ x। अगेन x कैसे स्पेस है? रिफ्लेक्सिव स्पेस है। रिफ्लेक्सिव स्पेस की प्रॉपर्टी होती है एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ रिफ्लेक्सिव स्पेस इज रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? Y is also reflexive space और Y is reflexive subspace of given space X। Also from 1 it is clear that Y is a separable space। 1 से हम क्या कह सकते हैं? Y कैसा स्पेस होगा? सेपरेबल स्पेस। तो इसके पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर x डुअल है किसी सेपरेबल स्पेस का तो उस केस में x के जितने भी क्लोज यूनिट बॉल होंगे वो सभी वीक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y कैसे स्पेस है? सेपरेबल नॉन लीनियर स्पेस है। अगर हम ये ले लें x इज इक्वल टू dual of y where y is a separable non-linear space, then by the previous theorem we can say that every closed unit ball of x is weak sequentially compact। तो ये weak sequentially compact सेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। थैंक यू।